नमस्कार, मैं हूं साहिबा और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। तो इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं जैग्रो सिंगापुर के स्टॉल पर और मेरे साथ मौजूद है जैग्रो के टीम। और मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर मानस मित्रा जो कि कंट्री हेड हैं इंडिया के, और मेरे राइट साइड खड़े हैं मिस्टर अनिल कटोच जो कि सेल्स मैनेजर है, और मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में खड़े हैं डॉक्टर हैरी जो कि रीजनल मैनेजर हैं इस कंपनी के। तो आइए फिर उनसे जानते हैं, पहली बार उनका ये स्टॉल जो है पीडीएफए में उन्होंने लगाया है और पहली बार उनका इंडिया में कैसा एक्सपीरियंस है इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर मानस मित्रा जी से। मानस मित्रा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम पंजाब में पीडीएफए में अपना स्टॉल लगाकर। थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि जो रश और जो फार्मर का अवेयरनेस है, यहाँ के फार्मर के, ये अवेयरनेस अगर पूरे इंडिया में हो जाए तो डेयरी लगभग देखा जाएगा तो 10-11 साल से हम लोग नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन में है ही, ये कुछ और जगह पे जाके पहुंचेगा। तो हम लोग ये पहली बार स्टॉल लगाया क्योंकि हमारे डेयरी डिवीज़न नई डिवीज़न है, तो ये डिवीज़न हमारा कुछ और भी आगे जाएगा एज अ बिजनेस ग्रो एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। जी, जैसे मैं आपको बता ही दूं कि जैग्रो सिंगापुर जो है एक फीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंपनी है जो कि फीड के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तैयार करती है। और वैसे जानना चाहेंगे कि ये कंपनी कैसे काम करी है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इसका भी हेड ऑफिस यहाँ पे इंडिया में नहीं है, तो काम कैसे कर। Madam, our product is coming till last 18-20 years by import. But I am motivated by our Honorable Prime Minister Modi ji, make in India. So we have already established our one factory in Chennai near to Chengalpattu, and we have started some products, toxin binders, trace minerals, like this type of some products already we have started from India. तो हम लोग फार्मर्स को पूरे प्राइस पे भी बेनिफिट देंगे और जो बोलते हैं न्यूट्रिशन और गुणवत्ता की क्वालिटी में, ये एज पर द जैग्रो सिंगापुर स्टैंडर्ड। दैट्स ऑन। So now I will come to Mr. Harry, Dr. Harry, I'm sorry. Dr. Harry, first of all, I guess this is your first visit in India. No. This is not my first visit to India. I come here about maybe 2 or 3 times a year. So I've been doing business in India for about 20 years now. So we are very excited to be in the dairy market. This is a new division that we have started some 12 months ago, yes. So I can say that we will deliver very good products for the dairy farmers. But what I feel will make the difference for Zagro in India is actually our staff. So I'm very proud of my staff. We have about, how many people we have here? About 10 to 12 people in India now in our animal health business. So I think what will make the difference to the industry is our staff is making network, making friends with stakeholders every day. And with good product, I think the only way our business can go is go up and grow. Thank you. As you are from Singapore, I must want to know that what kind of dairy farming is there in Singapore and how it differs from India. Okay, I will tell you a story. Yes, a short one. Yes, we have no dairy farming in Singapore. Okay, so I have a 15-year-old daughter at home. For her to see a dairy cow, I have to take her to the zoo to see one bull and one milking animal. So what will happen is I show her, this is where your milk come from. Yes. So how do I tie that to India dairy market? Yes. Dairy market for us, we are actually in the micro ingredients. Yes. So Singapore being a very advanced country, advanced technology, we have a laboratory. So we make the ingredients in Singapore, and what we make in Singapore, we deliver it into India. Then how you get milk from the animals? How do we get milk? We import 100%. That's really strange because most of the people don't know, just like me. I was just guessing that it is not there in Singapore, but it was like maybe it is, maybe it is not. For your information, Singapore is a chemical-free country. Whenever any product in manufacturing in Singapore, you can 100% assured it is a food grade. So animals, not only safety of the animal, whatever the chickens and whatever the meat, whatever the milk you are consuming by using the animals of India, जो पोसू जो खा रही है
उससे जो दूध चिकन जो भी निकल रही है वो ह्यूमन कंजम्पशन में कोई भी असर नहीं करेगा. आवर प्रोडक्ट्स क्वालिटी लाइक फ्रॉम द सिंगापुर बेस्ट. सो अनिल कटोच जी आपकी तरफ आएंगे जी. आप सेल्स मैनेजर है इसका तो कैसा अभी आप देखते हैं इसका एक तो फ्यूचर कैसा देखते हैं कंपनी का और इसके थोड़े प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए. श्योर. देखिए, सबसे पहला रीज़न था कि हम उसको लेके आने के लिए कि हमारा एक पहले प्रोडक्ट आता था बायोटिन, जिसके नाम से जैग्रो जाना जाता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसके पास ये मेरा विजिटिंग कार्ड जाता है वो मेरे को बायोटिन के नाम से ही जानता है. तो ये जो हमको प्यार मिला क्योंकि क्वालिटी की वजह से, तो उससे हमको फिर उनको प्रेरित किया कि हम बाकी चीज़ों में क्यों ना आएँ. दूसरी चीज़ हमने ये देखी, मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स हैं जो इस चीज़ को कवर करते हैं वो सब 15-20 साल पुराने हैं. तो एक गैप था, जो रिक्वायरमेंट है और जो प्रेजेंट है उसके बीच में गैप था. उसको पूरा करने के लिए हम प्रीमिसेस लेके आए. मुझे जान की बड़ी खुशी हो रही है और आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि 8 महीने के अंदर अंदर हम 100 टन्स तक पहुँचे हैं. और अगले आने वाले साल के लिए हमने अपने लिए एक बड़ा एग्रेसिव टारगेट लिया है कि हम एटलीस्ट इसको 3 गुना लेके जाएंगे. हमारा पहला और आखिरी मोटिव यही है कि फार्मर्स के लिए प्रोडक्ट बने, उनके भले के लिए प्रोडक्ट बने. और जैग्रो का साथ हमें मिला है. जैग्रो में मुझे काम करते हुए 5 साल हुए हैं और जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, सभी फार्मर जो है आंख बंद करके हम पे भरोसा करते हैं और हम उनके भरोसे पे खरे उतरने वाले. जैसे कि मैं देख रही हूँ, पहली बात तो ये जैग्रो अभी नई है इंडिया में, तो डेयरी फार्मर्स को थोड़ा भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसके बारे में क्या कहेंगे. और मैं यहाँ पे देख रही हूँ लिखा हुआ है ट्रस्टेड ऑर्गेनिक ट्रेसेस मिनरल्स. तो मतलब ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है या थोड़े से इसमें साइंटिफिक तरीके से भी इस्तेमाल करके इसको तैयार किया जाता है. जी देखिए, पहली चीज़ ये जैग्रो नई नहीं है. हम पिछले 17 सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं. पोल्ट्री सेक्शन में थे. जैसे कि आपको मैंने बोला बायोटिन, ये हमारा प्रोडक्ट मेरे नहीं होने से पहले से चलता आ रहा है. सभी लोग इसके बारे में जानते हैं. तो ये हमारे लिए नया नहीं है. उन्हीं का ये विश्वास और प्यार रहा है कि हमको ये आज ये प्रेरित कर रहा है कि हम इस कदम में आएँ. हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं ये सब लीक से हटके हैं. अगर आप कैमरा अगर दिखा भी सकते हैं कि मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं हम उन सबसे हटके हैं. हम जानना भी चाहेंगे ये रूमीजैग क्या है, ये जैग्रोमिन क्या है, इसके बारे में थोड़ा. जी, रूमीजैग बफर है मैडम. और जो टीएम है हमारा, ये ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल है. इसमें सिवाय 2 के बाकी सब ऑर्गेनिक फॉर्म में हैं. सिवाय 2 के आयरन के और आयोडीन के, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है. बाकी सब ऑर्गेनिक फॉर्म में है. किसी तरीके से हमारे बाकी जितने भी प्रीमिक्सेस हैं वो सभी मार्केट में जितने भी कंपोजिशन अवेलेबल है उन सबसे अलग हैं. एज़ पर रिक्वायरमेंट, पशु को कितना चाहिए उसके हिसाब से बनाया गया है. लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि फलानी कंपनी का अगर 100 ग्राम डाला है तो मैं 200 ग्राम डाल देता हूँ या 115 डाल देता हूँ. हमने वो देख के काम नहीं किया है. हमने देखा है अगर ज़रूरत 5000 ग्राम की है तो हमने उतना ही डाला है. इस चीज़ के कारण ही रिजल्ट मिल रहे हैं और इसी चीज़ के कारण हमारे पास जो कस्टमर है, ये फार्मर है, मुड़ के दोबारा आ रहे हैं. तो क्या ये जो है ये B2B सिस्टम है या B2C सिस्टम भी दोनों इन्वॉल्व? ये दोनों ही चीज़ों में काम करेगा मैडम. B2B भी करेगा, B2C भी करेगा. क्योंकि कई और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जिनको अच्छी चीज़ चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि हमसे सामान लीजिए ताकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता का बने. बाकी जो हम अपने फार्मर्स के लिए, भाइयों के लिए कर रहे हैं वो डायरेक्ट टू कस्टमर कर ही रहे हैं. तो दोनों तरीके से हम वो काम कर रहे हैं. तो मिस्टर मानस जी, आप ये बताइए कि कंपनी को कैसे देखते हैं. कंपनी आने वाले टाइम में, जैसे बहुत कंपटीशन भी है, बहुत सारी कंपनीज एस्टेब्लिश भी हो गई हैं, कुछ लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके साथ compete करना और अपने आप को एक नई जगह पे इस्टेब्लिश करना, राइट, तो इससे क्वाइट डिफिकल्ट थिंग. तो कैसे देखते हैं आप बीइंग अ कंट्री हेड? This is my job because I have joined here in 2 years, 6 months or 7 months, and after within 1 year I have just survey, and after that I have launched this division. Okay, and I am pretty sure हम बहुत जल्दी करेंगे. हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि one fine morning we will touch some turnover or all this thing, but definitely फार्मर का ट्रस्ट तो हम जीतेंगे. अभी भी जीते हैं, आगे भी जीतेंगे. कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस ऑलवेज. तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, धीरे धीरे चीज़ें और इस्टेब्लिश होती हैं. आपने पूछा इंटरनेशनल कंपनी, वी आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग 73 कंट्रीज वाओ. in Jagro Singapore.
तो सो वी नो द बेटर इन एवरी मार्केट। तो मेरे हम लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी होता है सर, एक ही लाइन में मैं इसको ये कर रहा हूँ, ग्लोबल प्रोडक्ट लोकल सोल्यूशन। जैसे आप साउथ में, जैसे आपने बताया कि ये स्टार्ट किया है हमने, और नॉर्थ में देखो ज्योग्राफिकल कंडीशंस का बहुत फ़र्क है दोनों में। साउथ में ज़्यादातर गर्म वो रहता है और नॉर्थ में थोड़ा सा ठंडक रहता है। तो कैसे देखते हैं कि इनके लिए कैसे ये प्रोडक्ट्स जो है काम करते हैं? सी हीट एंड ह्यूमिड कंडीशन इज अ डिफरेंट। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको जो रॉ मटेरियल्स फीड किया जाता है उसमें चेंजेस होता है, लेकिन जो फीड एडिटिव्स वो तो रिक्वायरमेंट एनिमल का सेम है, तो उसमें प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पे भी आपका 100 ग्राम डोज अगर जा रहा है तो वहाँ पे भी जाके 100 ग्राम ही डोज जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं मक्का मेज वगैरह, वहाँ पे अगर दूसरा इंग्रेडिएंट्स है तो वो तो रॉ मटेरियल्स की हो गया। लेकिन हम तो प्रोडक्ट और एडिटिव्स जो देते हैं, जो उसका जो इशू पहले क्या इशू आता है, मिल्क प्रोडक्शन, सेकंड इशू क्या आता है, रिप्रोडक्शन, ये जो इशू है ये इशू नहीं आएगा। तो इसके लिए प्रोडक्ट में कोई साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कुछ अंतर नहीं आएगा। मे बी doses will be different, that can doctor and consultant and technical person can do, but as per our NRC requirement, Anil has already elaborated everything in detail. As per the NRC, as per the breed, as per the today's animal production requirement, as per the BCS condition, accordingly we have launched the plan, the product. हम लोगों ने प्राइस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हम लोगों ने दिया है जो रिक्वायरमेंट है वो देंगे। फार्मर अगर बेनिफिट होंगे तो वो कोई बात नहीं है। पहले अनिल ने एलाबोरेट किया, हम लोग वो प्रोडक्ट लाएंगे जो प्रोडक्ट फार्मर के लिए काम की हो, जो फार्मर के लिए अच्छे होगा वही लाएंगे हम। So Dr. Harry, this as you said, you already been here so many times. So how you find Indian farmers here? I mean, especially in Punjab. All right. I would say the Indian farmers in Punjab are very progressive. They're very receptive to technology and they're very receptive to science. So I think it's very important that the India dairy farmer grow up according to the national standards. So with the help of science and hopefully Sagro can also contribute to that. So we propagate good information and we propagate our good products. So therefore, in due time, we will grow together. And how you find India? India is the best. Yeah, it is always the best. So अनिल जी, कोई ऐसा सवाल जो आपकी जानकारी में हो और मेरी जानकारी में नहीं, आप हमारे किसान भाइयों से कहना चाहें? डेफिनेटली एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लें, किसी भी कंपनी का लें, आप उसका पहले कंपोजिशन चेक करें। हम सभी फार्मर्स को आज हमने एक ही चीज़ बोली है कि आप ये देखिए, अगर उनको लगता है जैग्रो से बेहतरीन कंपोजिशन किसी कंपनी की आ रही है, जी सच के जा करके आप वो लीजिए, क्योंकि वो आपका भला ही करेगा। लोकल कंपनीज पे ध्यान मत दीजिए और हमेशा स्टैंडर्ड की कंपनी पे चाहिए। मेरी तरफ से उनको यही सलाह रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है तो वो आपको कैसे अप्रोच कर सकता है? सर मैडम, हमारे वेबसाइट में सब कुछ है। अगर मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वी आर 24/7 फॉर द फार्मर्स। आवर जॉब इज़ टू बेस्ट सर्विस टू द इंडस्ट्री। तो आप हमारे नंबर आपका चैनल में नीचे दे सकते हैं, मैं नंबर आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा, तो हमारे नंबर आप शेयर कर सकते हैं फार्मर से, और मेल आईडी भी। फार्मर कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम बाय व्हाट्सएप और फोन कॉल और एनीथिंग। वी आर हियर टू सर्व टू द आवर कस्टमर, क्लाइंट्स एंड चैनल पार्टनर्स एंड फार्मर्स। हमारे पंजाबी डेयरी किसान जो हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उनके लिए क्या कहें? सर मैडम, एक ही आपको अनिल जी ने बोल दिया है, हेल्दी एनिमल हैप्पी फार्मर, दिस इज फ्रॉम आवर पॉइंट। अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो फार्मर खुश होगा, चाहे पंजाब की हो चाहे राजस्थान की हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली बार मैंने आपसे बात करी है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें भी शायद कंपनीज की ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे जैसे दिन ब दिन डेयरी फार्मिंग में लोग और एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कंपनीज की बहुत ज़रूरत है और अच्छे प्रोडक्ट्स की खासकर और भी ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अगर आप भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप इनको कॉल कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट पे जाकर इनके पूरे प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।